Yes, ma'am. हाँ. The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated. With this beautiful line by the Mahatma Gandhi, I would like to start our OSH session. As I, Ayush Zavedi, from as a member of our OSH team, welcomes you all in this session, and our chief guest as well, who is going to give our fruitful discussions on this session. So before I jump onto the topic of the session, I would like to tell something about the OSH. OSH, which stands for the Open Student Hour, it is a platform which gives to the students to discuss something which is socially related or politically or something which is economically related aspect in different society. And it is a platform and it is an initiation by the student and for the students. Here students do all the activities and it is open for all. It do not have any foundation of departments or universities. From anywhere a student can join us and share their beautiful views, and we all consider their views in different perspective. So this was all about OSH, and now this is our OSH session in which we kept the topic as a violent and inhumane inhumane act which is done with the animals. So before I start, I would like to share with you a few incidents which in the recent past, which has shown that the cruelty against the animals has been increasing with a very fast pace. As we can see, the recent case was of the pregnant animals, pregnant elephant, which was being which has eaten the cracker, which was given the cracker, and she was pregnant, and she was from Kerala itself. So that shows that how the cruelty of the people against the animals is increasing. And the second case was the pregnant cow, which was being also given the cracker inside a meat, and she is eaten in the Himachal Pradesh. So these are the two or three incidents that I might be sharing in front of you. There are many, which shows that cruelty against the animals is increasing a very fast pace. We need to understand that if we can't do anything good with the animals, then don't try to do anything bad with them as well. They are not the one who is going to take anything from you, but you are the one who is going to snatch many things from themselves. As we have seen in the lockdown period, in the COVID-19, we all were sitting in our homes very happily. We were eating and we were enjoying and watching televisions and doing many other things. But what about the animals, those who are living in the street dogs? If we talk about the street dogs, street cats, and many other animals, those who totally depends on ourselves, whatever we used to throw in our streets and whatever we used to share with themselves is all what they depend upon. So in a COVID-19 period, in a lockdown period, all these things have been got shut. So this has also increased the cruelty and inhumane act against the animals at a very fast pace. Uh, and there is a two things what with the animals we could say in a violent terms. One is the necessary sufferings, and the second would be the unnecessary sufferings. If I take you through a story, for example, there are two people. One one is a person who has came from the office, and he is very disheartened, means he is very not agreed with all the incidents which has happened with himself on that day, and he is very frustrated, and he came to his house and there is a pet, or you can say there is a dog who is a pet in his house, and he was very frustrated, and the dog started licking on his face. Then what he did, he just thrown him out, and he just outrageous and burn him out. So this was the first incident, and the second was there is a scientist and there is a researcher who used to research on the dogs what kind of burns that the animal or a dog is going to have in itself. So if he is going to, or he or she is going to burn, the researcher is going to burn that dog, it is only related with the industries. So that is the necessary suffering that we are going to create with the animals. And this first example that I told to you was the unnecessary suffering that the pet has been given at that time. So necessary and unnecessary sufferings which is happening in case of the animals, and the in case of the inhuman and the violent act that we are creating with the animals is the biggest threat on the humanity itself.
So if I talk about in the case of the India, there are many laws which are being created to solve this kind of problem and to rescue animals from the cruelty against against the humans. So the first law which was being brought was in 1960, which is known as the Prevention of Cruelty to Animals. So this is an act in which the section 11 totally defines what are the conditions and how we are going to detain a person, or what the act is going to be considered. So section 11 of this act totally defines, and it gives the laws, it gives the right to the animals not to be done any kind of cruel activities against them. For example, we have seen in the case of circus, where the animals are being trained, and very cruelty it has been done in themselves. And in the second case, if I talk about in zoos as well, and we have seen that that animals are being kept inside a small block, or being catched and being threat with a rope. So these kind of activities and cruelties are happening with the animals in a very fast pace, which shows that somewhere we are lagging behind, and these laws are not totally going to define what the animals really want from us. And the second, the act which was being came in 1972, which is known as a Wildlife Protection Act. This also protects the wildlife animals from any kind of cruelty which is going to happen from the human side. For example, we are clearing out forest at a very fast pace, which is going to destain the shelters of the animals, many variety of the wild animals. So this is also the kind of cruelty that we are going to do against the animals, which is going to destroy our food web, and which is also going to create a destroy our food chain in our ecosystem, which is also the biggest threat for the animals. And I think we need to understand that these are the acts which is going to totally going to come back to us as well. Whatever the cruelty and whatever the act we are going to do with the animals is going to ultimately come back in with to us as well. So at last, I would like to say that there should be the trust between animals and humans. As long as you trust with the animals, you don't need to be fair with the animals. And as long as you don't fear, you are not going to hate them as well. So as long as you trust, you gave them you gave them the trust, you are going to get them 100 times back of themselves. As we have seen that the dogs and the street dogs are very faithful against towards the humans. If you throw a one piece of bread to any kind of dog, he is going to be more foodful to you. And second, with the humans, it's not going to be the case as such. So at last, I would like to start end with a small video which shows that if in place of the animals, if we have the humans, what kind of cruelty we are going to see with. So I would request with the Aditi ma'am to play that video, please. Aditi ma'am, are you listening me? अभी किसी ने मेरे बारे में जानने की कोशिश की थी जी और मैं अपना परिचय खुद दे देता हूँ। गेट जी बंद है इसलिए खड़ा हो गया हूँ। जी मैं प्रदीप पात्रा, मैं आरडीएसओ में जॉब करता हूँ और इसी नवंबर में नवंबर 2020 में मेरा रिटायरमेंट है। यानी कुल मिला के 30 साल से मैं जानवरों की सेवा कर रहा हूँ और इस 30 सालों में अनगिनत डॉग्स का रेस्क्यू किया, अनगिनत स्नेक्स का रेस्क्यू किया है। करीबन 20-25 मैंने गाय का ट्रीटमेंट किया। गाय पे मैं हाथ नहीं डालता क्योंकि गौ सेवक बहुत से हैं गली गली में,
और करीबन 50-60 मंकीज का भी मैंने रेस्क्यू किया है। और मेरी इच्छा है और भी आगे जाने की, लेकिन अभी तक नौकरी में होने के कारण मैं ज्यादा आगे नहीं जा पाया। और स्थिति यह है कि मैं ऑफिस से भी इसी तरीके से छुट्टी ले लेके मैं भागता था रेस्क्यू करने के लिए। नतीजा ये हुआ है कि आज रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे फुल बेनिफिट्स नहीं मिल पा रही हैं जो छुट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं छुट्टियां ले चुका था। खैर, अभी जैसा कि क्रुएल्टी, एनिमल क्रुएल्टी होती है, पशु क्रूरता। पशु क्रूरता हम लोग जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं होता है, इसलिए हम लोग किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अज्ञानता के कारण क्रुएल्टी कर देते हैं। जैसे सपोज आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, कोई डॉग आपके रास्ते में आ गया, तो आप उसको या तो जूता मार देते हो पैरों से की ठोकर से, या तो ईंटा पत्थर मार देते हो। केवल उद्देश्य आपका ये नहीं कि मुझे मारना है, उद्देश्य ये है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ये भी एक क्रुएल्टी का पार्ट है कि वो अपनी जगह पर रुका हुआ है और या सो रहा है या बैठा है या खाना खा रहा है, और हम उसको मार रहे हैं। अगर मेरे जैसा कोई आदमी होगा तो मैं तो तुरंत इसको ऑब्जेक्शन करूंगा, लेकिन कहाँ तक मैं अकेला करूं। इसी तरीके से आप देखते होंगे लोग घोड़ा गाड़ी को, जिसको हम लोग खड़खड़ा कहते हैं या टांगा कहते हैं, इसमें भी हम लोग बैठ जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है एक घोड़ा गाड़ी में कितने लोग बैठते हैं टांगे में? चालक को मिला के केवल 5 आदमी होने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परिवार के साथ 5-5 6-6 आदमी परिवार के साथ बैठ जाते हैं और चल देते हैं। जैसे लखनऊ में तो कोई बात नहीं, प्लेन रोड है। हम इसी चीज को अगर हम कहीं हिल स्टेशन में देखें, राजस्थान है, राजस्थान में बहुत से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे कि घोड़ा गाड़ी चल रहे हैं, और उसमें हम लोग टूरिस्ट के तौर पे बैठ जाते हैं परिवार के साथ, 5-5 6-6 8-8। नो डाउट घोड़ा खींच सकता है, लेकिन उसको जो चाबुक चालक है वो चाबुक मार मार के चलाता है। ये भी एक क्रुएल्टी का पार्ट है। चाबुक अलाउ नहीं है, हम उसके लिए संटी रख सकते हैं, उसके लिए हम संटी रख सकते हैं बिना रस्सी के। चाबुक का मतलब हो जाता है कि रस्सी बंधी हुई है, और उसमें रस्सी में आप लोगों ने देखा होगा गांठ भी लगी रहती है, और वो गांठ जो है घोड़े के पेट पे लगता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम मारते नहीं है, नहीं मारते नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसको उस चीज का डर भी दिखाते हो, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर एक थपकी भी देते हो, तो उस थपकी से उस घोड़े को दर्द होता है। तो चाबुक एक इस तरह का औजार है जिस तरीके से हम लोग जेब में चाकू लेके घूमते हैं, इसलिए चाबुक भी हम अलाउ नहीं करते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप लोग का समूह है। मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और अपने टाइम पे मैं फुटबॉल टीम में, आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के फुटबॉल टीम में भी रहा हूँ, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स टीम में भी रहा हूँ। तो मुझे मालूम है अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में अगर 10-15 लोगों का एक समूह इस तरीके से बन जाए, तो 10-15 ही समूह नहीं बनेगा, वो 50-60 समूह बन जाएगा। क्योंकि 10-15 लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने लोकेशन में अगर 5-5 लोग को भी जोड़ ले तो एक एक समूह बन जाता है। तो ये समूह अगर हमारा काम करे तो बहुत सी क्वालिटीज को हम रोक सकते हैं। और इसको रोकने के लिए आपको सबसे पहले जागरूकता पैदा करनी होगी। लोगों को मीटिंग करके समझाना पड़ेगा कि क्रुएल्टी का क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। हम लोग को नहीं मालूम कि हमने एक ईंटा भी मार दिया भगाने के लिए, वो क्रुएल्टी का पार्ट है। आदमी तो कहता है यार वो हट नहीं रहा था, मैंने ईंटा मार के हटा दिया ना, वो हटेगा। आप उसके साथ दोस्ती करोगे तो सारे जानवर, अब मैं आपको वीडियो में इसमें हाथ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप मेरे हाथ को देखेंगे तो 30 साल में मेरे को 29 डॉग्स ने मुझे बाइट किया। एक
डॉग अगर बाइट कर ले तो 30 साल, यानी 1 साल में एक डॉग ने मुझे काटा ना। मुझे करीबन इधर 7-8 सालों से किसी डॉग ने काटा नहीं है। डॉग बाइट भी तभी होता है जब वो समझता है कि मुझे कोई अहित कर रहा है। डॉग बाइट हो या स्नेक बाइट हो या मंकी बाइट हो, ये सब जाने अनजाने में होता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो वहां पे बैठा है। जैसे स्नेक्स है, स्नेक्स बैठा हुआ है और अंधेरे में हम चले जा रहे हैं, या पार्क में वो रोड क्रॉस, पार्क में वो भी घूम रहा है, हम भी घूमते हुए चले गए शाम के समय अंधेरे में, तो हो सकता है हमारा पैर पड़ जाए। तो उसने उसका उद्देश्य ये होता काटने का कि हटो मेरे ऊपर से। जिस तरीके से हम आपके हाथ को पकड़ेंगे, यहाँ पे आपके चोट लगी हुई है और मुझे नहीं मालूम, मैंने यहाँ पे आपका हाथ को पकड़ लिया, तो आप इंसान हो, मुंह से कह दोगे हमें यार यहाँ से हाथ हटाओ, दर्द हो रही है। लेकिन वो बेजुबान कैसे कहेगा कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रही। तो ऐसे कंडीशंस में गाय है, कुत्ता है, जिसको हम लोग, सॉरी कुत्ता तो मैं कहता नहीं, गलती से निकल गया, डॉग्स है या कोई अन्य जीव है, मंकीज हैं, बंदर हैं, ये सब जो है अपने मुंह से आपके हाथ को हटाएंगे कि यहाँ पे मुझे दर्द हो रही है, यहाँ से अपने हाथ को हटाइए। उस चक्कर में वो क्या करता है कि अपने मुंह का जब एक्शन लेता है, तो उस झटके में अगर आपका हाथ उसके मुंह में लग गया, दांत लग गए, तो हम कहते हैं कि काट लिया। या कभी कभी ये लोग गुस्से में काट भी देते हैं, गुस्से का मतलब दर्द हो रहा है, दर्द पे ही मैंने उसकी नब्ज को दबा दिया, तो वो काट लेगा। लेकिन आप देखिए, स्पेशली मैं डॉग्स के बारे में कहूंगा कि डॉग्स बहुत ही सेंसिटिव जानवर है, और ये अगर किसी को काट भी लेते हैं, गुस्से में काटना एक अलग हो गया, अनजाने में अगर काट लेते हैं तो ये सॉरी कहते हैं। और सॉरी उनका कहने का लिहाजा समझना बहुत जरूरी है। सॉरी जब वो लोग कहते हैं तो उनके आंखों में अजीब सा वो देखेंगे, दयानीय दृष्टि से देखेंगे कि सॉरी। वो बोल नहीं पाएगा लेकिन आपको आंखों से कहेगा, और अगर आप फ्रेंडली है वो आपके साथ, तो कोशिश करेगा कि आपको जहाँ पे उसने बाइट किया है वहां पे वो चाटेगा भी कि वेरी सॉरी। जैसे हम लोग किसी को मार देते हैं, बच्चे को, और बाद में बेटा तुम सॉरी यार तेज लग गई होगी, जिस तरह से हम लोग बच्चों को वो करते हैं, इसी तरह के डॉग्स भी वेरी सॉरी, गलती से मैंने काट लिया, कहाँ लगा है चोट, लाओ मैं चाट के ठीक कर देता हूँ। तो ये अपने भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन उस भाव को हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। आदमी कहता है भौंक रहा है, अरे भौंक नहीं रहा, वो आपसे बात कर रहा है। गाय भी रंभा के बात करती है, तोता भी बात करता है। आप तोता को आप घर पे सिखाते हैं तो तोता भी आपसे बात करने का लैंग्वेज को सीख लेता है और उसी से बात करता है। तो इसी तरीके से सभी जीव बात करते हैं। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि किसी भी जीव को हमें ना लगातार बांध के रखना चाहिए, ना लगातार दौड़ाना चाहिए, ना लगातार उसको एक जगह पे बैठा के रखना चाहिए। ये सब क्रुएल्टी का पार्ट आता है। खाना भी देना है, नहलाना भी है, उसको समय समय पर टहलाना भी है। अगर कोई पक्षी है तो पक्षी को पिंजरे के अंदर से बाहर निकालिए, उसको भी थोड़ा टहलने दीजिए, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं आजाद होके पिंजरे से बाहर होके घूमता रहूं। इसलिए किसी भी जीव को हम कैद करके नहीं रख सकते, बांध के नहीं रख सकते। इस क्रम में एनिमल क्रुएल्टी के संदर्भ में अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे हिंदी में पूछ सकते हैं, मैं गाड़ी चलाते हुए आपसे बात का जवाब भी दे सकता हूँ। कोई मुझे सवाल? पात्रा जी, मुझे लगता है जी आप गाड़ी क्योंकि खुद ही चला रहे हैं, तो अभी हम लोग जी आपको डिस्टर्ब ना करें, और जब आप पहुंच जाएंगे वहां पर अपने स्थान जी पर, जी तो वहां पर पहुंचने के बाद हम लोग आपसे जी फिर से संपर्क करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आपका चलिए, ध्यान मैं तो हूँ, लाइन लाइन पे हूँ,
नहीं नहीं, मैं लाइन पे हूँ, ध्यान पे ही है मेरा। अच्छा, ठीक मैं है। बहुत से जी, काम अकेले ही करता हूँ, तो जी, जी, इतना तो अलर्ट रहता हूँ। जी, जी। अगर तो किसी बच्चे को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेड लाइट पे खड़ा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आयुष, जी आगे लोगों के जो क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं उनको आगे पूछो। मैम सर, पहले तो एक मेरा ही एक सवाल है जो मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा। सर हाँ। जैसे कि सर गलियों में सर इतने ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हो जाते हैं, तो सर उनके नंबर को कंट्रोल करने के लिए लोग उनको मार देते हैं। जैसे कि मैंने ये केरला का एग्जाम्पल सुना था, वहाँ पे लोग उनको मार देते हैं। तो क्या सर उसके अलावा कोई सोल्यूशन है जो उनको उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके और उनको नंबर्स को भी डिक्रीज कर सके? आपने केरल का एग्जाम्पल दिया, आपको मैं बता दूं आयुष, यस सर। केरल में इतनी केरल में इतनी क्रुएल्टी हो रही थी कि मुझसे भी रहा नहीं गया। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं केरल में 10 दिन रहा हूँ उस पीरियड में, यस सर। और 10 दिन में वहां पे रह के इसके विरुद्ध जो है वहां पे ऑब्जेक्शन किया, मीटिंग्स की, और वहां पे क्रुएल्टी जो हो रहा था वो एक सत्ता का खेल था। वहां पे जो है ये लोग बदमाशी कर रहे थे, ये कि डॉग्स को हटा दें तो शायद जो है वहां पे जनसंख्या रुक जाएगी। लेकिन वहां पे वो लोग हटा नहीं रहे थे, वो उनका मर्डर कर रहे थे, सबका मर्डर कर रहे थे, यस पकड़ सर। पकड़ के। ठीक है ना। और इस चीज को मैं लखनऊ में रहा, न्यूज़पेपर में या टीवी में देखकर मैंने जो भी महसूस किया था, मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैं चल दिया था 10 दिन के लिए। और 10 दिन रह के वहां पे अलग अलग शहरों में जाके लोगों को मोटिवेट किया। अब मोटिवेट किया है तो उसका नतीजा ये हुआ कि 1 महीने के अंदर बहुत से डॉग्स लोगों ने अडॉप्ट भी किए, मारने नहीं दिया। उस चक्कर में कई लोग को पुलिस ने तंग भी किया। तो हाँ, अब दूसरा सवाल आपका कि गली में जनसंख्या वृद्धि, इसके लिए भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण किया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल। यस सर। ये लखनऊ में चल रहा है इस समय, लेकिन 100% कहीं पे भी काम नहीं होता है। 100% कहीं पे भी काम नहीं होता है। इसमें भी धांधलेबाजी ये हो रही है कि ये लोग जो है पेपर्स में दिखाते हैं हमने पर डे 100 डॉग्स को किया या 500 डॉग्स को किया, लेकिन पेपर कुछ कहता है, फिजिकली कुछ और है। तो यहाँ पे भी लखनऊ में नगर निगम कर रही है एबीसी। और आपके शायद इंदिरा नगर में ही इनका ऑफिस है, हॉस्पिटल है एबीसी का, जनसंख्या नियंत्रण का। इंदिरा नगर थाना है ना आपका, थाने के बैक साइड इनका सेंटर बना रखा है, जहाँ पे कि ये डेली डॉग्स की नसबंदी कराते हैं। और डॉग्स की नसबंदी के लिए डॉग्स को जो उठाते हैं, जिस शहर से वो वापस छोड़ देंगे, नसबंदी करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उस डॉग को उठा के लाकर जहाँ से उठाया था वहीं पे छोड़ेंगे। लेकिन 10 दिन अपने पास रखते हैं इलाज के लिए, क्योंकि उसका टाके वाके सूख जाएंगे, जख्म सूख जाएगा, तभी वो लेके चलते हैं वहां से। लखनऊ वासियों में भी बहुत से लोग होंगे इंदिरा नगर के। अगर आप लोग देखना चाहो तो इंदिरा नगर के थाने के बैक साइड एक सड़क जा रही है, मुझे नाम नहीं मालूम, वहां पे है पशु आश्रम, गौशाला भी बना रखी है ये नगर निगम ने। वहीं पे इन लोग की सबकी नसबंदी होती है। और आलमबाग से भी डॉग्स वहां पे जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आलमबाग में रहता हूँ तो इसलिए मैंने आलमबाग का नाम लिया। ये जोन वाइज काम करते हैं। अब जोन वाइज में, क्योंकि कोरोना काल हो गया था, तो इसलिए संख्या बहुत स्लो हो गई। लेकिन इस समय बहुत तेजी से है, पर डे करीबन 50 से 60 डॉग्स को नसबंदी हो रही है लखनऊ में। लेकिन
होता क्या है, हर 6 महीने में डॉग्स जो है बच्चे देता है। हर 6 महीने में जब वो बच्चे देगा तो हमारे पास ऑपरेशन का टाइम होता है केवल 3 महीने का, क्योंकि जो फीमेल बच्चा देती है उसको भी हम टच नहीं कर सकते 2 महीने तक। तो 2 महीना तो ये चला गया, और आगे फिर 4 महीने के बाद वही फीमेल फिर मदर बनने की स्थिति में आ जाती है। मदर बनने की स्थिति में आ जाती है, फिर से 4 और 2 6, फिर 6 महीने के बाद वो फिर से बच्चे देती है। तो इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। लेकिन आप देखोगे ग्रोथ जो है एज इट इज है। अगर लखनऊ शहर में 5-10 साल पहले, तो आज भी वही 50,000 होंगे या 60,000 होंगे, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ उतनी ही है, लेकिन ये होता क्या है कि अप डाउन चलता रहता है। एक गली में अगर 5 बच्चे हुए हैं तो सरवाइव कितने करते हैं? मुश्किल से 1 या 2। लेकिन दिखाई देता है कि इस बिच ने 5 बच्चे दिए, 6 बच्चे दिए, लेकिन सरवाइव करता है 1 या 2। तो यही कैलकुलेशन है इसका कि हम 50,000 ऑपरेशन करना है, 50,000 हो नहीं पाता, होता है मुश्किल से 10,000 20,000। फिर अगले सीजन में जो पपीज होते हैं वो बड़े हो जाते हैं 1-2, तो उनको भी जोड़ दिया जाता है। तो स्थिति वही रहती है। नसबंदी बहुत से डॉग्स की है लखनऊ में, लेकिन अब जो जिनकी नसबंदी हो गई है वो डॉग्स या तो एक्सीडेंट रोड पे रहते हैं, किसी रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या कोई बीमारी से मर जाता है। तो इसलिए उनका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। और कुछ आयुष? Yes, sir. आयुष और कोई सवाल? एक चीज Yeah. हम पूछना चाह रहे हैं पात्रा जी, आपके लिए एक तो जी चैट बॉक्स में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से अपनी हाँ फीलिंग्स शेयर किया है, और जो जी एनिमल्स के लिए आपने बताया कि वो सब रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे प्रेम को समझते हैं। तो ये सुनकर बिल्कुल। के बच्चों को हाँ बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को उनके साथ बहुत ही प्रेम वाला व्यवहार करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स जी उनके साथ शेयर करनी चाहिए। मेरा ये प्रश्न था कि क्या जी नेचर में अपने आप एनिमल्स की संख्या बैलेंस होने का फॉर्मूला नहीं है? क्या ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नेसेसरी है क्या? जी हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर सरकार के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। हुँ। सरकार नहीं, 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 के जैसे भरोसे मेरा रहेंगे तो सरकार तो कुछ कर। नहीं, मेरा जी कहने का ये मतलब था कि जैसे प्रकृति में हर जानवर किसी न किसी फूड चेन में है या किसी न किसी एक विशेष भूमिका में है, तो वो जी जानवर की संख्या अपने आप दूसरे जानवर के द्वारा सीमित कर दी जाती है या दूसरी परिस्थितियों जी के द्वारा सीमित कर दी जाती है। तो ऐसी जी परिस्थितियों में क्या हम अलग से अगर मानव निर्मित कोई अगर हम उपाय ना करें, तब भी क्या इनकी जनसंख्या सीमित रहेगी? या फिर जैसे बंदरों का कई बार बहुत उत्पात बढ़ जाता है, या जैसा आपने कहा कि डॉग्स का बहुत उत्पात बढ़ जाता है, तो वो करने की आवश्यकता रहेगी उनकी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत अति आवश्यक है, और इसमें हम लोग का योगदान बहुत जरूरी है। हुँ, क्योंकि सरकार हो या नगर निगम हो, हमारे गली में कितने डॉग्स हैं उनको नहीं मालूम। हुँ, जब तक हम जागरूक होकर नगर निगम के पीछे नहीं पड़ेंगे कि हमारे गली में 10 डॉग हैं, 10 को नसबंदी होनी है, तो नगर निगम को नहीं मालूम। नगर निगम यही कहती है कि हमें आप या तो बुलाइए, एक डॉग के लिए हम नहीं आएंगे, 8-10 डॉग को पकड़ने के लिए हम आएंगे। जी, क्योंकि वो भी देखती है कि हमारी गाड़ी का फ्यूल खर्चा होता है, मैन पावर खर्चा होता है। जी, ये स्वाभाविक है कि हमको इसमें शेयर करना पड़ेगा। हुँ, अभी देखिए, मैं भी अपने इसी गाड़ी में हुँ, एट ए टाइम पे 2-2 डॉग को, 3-3 डॉग को ले जाके नसबंदी करवाया हूँ। हुँ, तो मंकी का है, मंकी का भी यही है कि मंकी जो है आज हमको जनसंख्या दिखाई दे रही ज्यादा। अभी पीछे मैंने कहीं पे देखा था कि किसी बच्चे को मंकी ने काट लिया।
ये मंकी भी काटते तभी हैं जब उनको भूख लगती है। अगर भूखे को अगर हम खाना दे देंगे, कमजोर आदमी को अगर हमने पैसा दे दिया, तो वो ना चोरी करेगा ना चमारी करेगा। चोरी वो तभी करता है कि जब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कहीं से खाना मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा है, तो ऐसे हालात में वो फिर इधर उधर हाथ मारता है, जिसको हम लोग चोर का नाम कहते हैं, चोरी करना। जी जी मैं 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि तेलीबाग में पहुंच गया हूँ। जरूर जरा जरूर एड्रेस जरूर मुझे सर्च करना होगा। जरूर ठीक है जरूर ना, थैंक सॉरी। यू। नहीं नहीं अभी नहीं, बहुत बहुत मैं टच धन्यवाद। में हूँ वैसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यामिनी, अभी तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना था, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था यामिनी? यामिनी, तुम्हें आवाज मिल रही है हमारी? Yes, ma'am. हाँ, Good तुम क्या afternoon, जानना ma'am. चाहते हो? हाँ, गुड आफ्टरनून। Ma'am, मैं ये जानना चाहती थी कि being someone who has voluntarily left the consumption of non-veg like around 10 years हाँ ago हाँ, मैं because I तेलीबाग was पहुंच गया हूँ। because I was अच्छा हाँ, अच्छा जी। तो लेफ्ट आपके लिए आपको हाँ, एक ये चौराहे प्रश्न से लेफ्ट पूछ रही है, एक प्रश्न पूछ रही है यामिनी। पीजीआई की तरफ। यामिनी, हिंदी में अपना प्रश्न पूछो, जिससे अरे सदर से स्पष्टता yes, आ रहा तो ma'am. लेफ्ट घूमना है। Ma'am, I think sir is on the phone, I guess. हाँ, अच्छा अच्छा। तभी ये अच्छा मंदिर की रहेगा तरफ अगर से, तुम लोग मंदिर की तरफ से, हिंदी मंदिर में के अपनी पीछे बात वो करो। लेफ्ट साइड ना। हाँ, अभी सर को अपने एड्रेस पे पहुंच जाने दो, क्योंकि वो रेस्क्यू हाँ, मोड में है इस समय। नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ, पेट्रोल देखा। हाँ, जो भी होगा पेट्रोल पंप एक है, मैंने देखा। ठीक है। सेक्टर 6 नीलमथा रोड। ठीक है, मैं पता करता हुआ आता हूँ। अभी तो नीलमथा आना था तो उधर से बता देते, कैंट से हम आ जाते। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेक्टर 6 नीलमथा। मैं वहाँ यामिनी कंटिन्यू करूं? Yes, ma'am. तो हाँ मैम मैं ये कहना चाहती थी कि मतलब आई एम समवन, मैंने नॉनवेज खाना 10 साल पहले छोड़ दिया था बिकॉज आई वाज ह्यूजली अफेक्टेड बाय समथिंग. एक्चुअली देयर वाज एक a little sparrow had actually hurt itself and I had nursed it for around 10 days, and but it still couldn't survive and it died. So it had a huge emotional impact on me, and because of that I left non-veg around 10 years ago. So and but so that's why I try to convince a lot of people कि वो भी non-veg खाना छोड़ दें, and because that's like one of the major things which we can do to stop animal cruelty. But I यामिनी, still मैं I तुम्हारे सवाल find का it जवाब hard. दूं? जी जी जी, Yes यामिनी, बताइए sir. बताइए Yes पात्रा sir. सर। हाँ, Yes sir. किसी का भी कोई सवाल हो सर मैं हिंदी में पूछेंगे तो मुझसे ज्यादा इजी रहेगा मुझे भी yes sir. समझने में। ठीक है हाँ ना, सर. देखो सर बेटा, मुझे ऐसा है कि पृथ्वी का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जी सर. ठीक है ना, अगर हम मुर्गी मुर्गी को अगर हम नहीं खत्म करेंगे तो मुर्गी का इतना भीड़ हो जाएगा इस पृथ्वी में कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। दूसरा, बकरी बकरी इतनी जनसंख्या इसकी बढ़ जाएगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप देखो, शहर के अंदर रहते हो, केवल डॉग्स को लेकर ही हम लोग परेशान रहते हैं। अगर हम इसी तरीके से बकरियों को अगर हम रखना लगेंगे या बतख ये मुर्गियों को बचाने लगेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 1 मिनट यामिनी, 1 मिनट होल्ड करना। ये भैया सेक्टर 6 का रास्ता, नीलमथा सेक्टर 6 यही। हाँ, क्योंकि देखो, मुझे भी पसंद नहीं है चिकन खाना, मटन खाना, मछली खाना। इस तरीके से मछली को भी, अगर मछली को भी हम मार देंगे, नहीं मारेंगे, बचा छोड़ देंगे कि यार जीव हत्या है, तो तालाब में, नदी में, समुन्द्र में इतनी भीड़ हो जाएगी मछलियों की कि आप समझ नहीं सकती कि कितना दिक्कत आएगी। पृथ्वी को बैलेंस बनाने के लिए इनका एक साइकिल है।
छोटे जानवर को बड़ा जानवर खाता है, जैसे चींटी को दीमक खाता है, दीमक को नेवला खाता है, सांप खाते हैं, सांप को मोर खाता है, मोर को कोई दूसरा पक्षी जीव खा लेता है। तो इनका एक साइकिल बना हुआ है कि इस तरीके से हमको, अगर हम इस साइकिल के अंतर्गत अगर ये जीव को ना मारें, बचे रहेंगे, तो पृथ्वी का बैलेंस बहुत बिगड़ जाएगा। अभी देखो, हम डॉग्स पे ही हम फिर से आ गए कि अगर आपकी गली में एक डॉग है आज के टाइम पे, वो 2 साल के अंदर उस गली में 10 से 15 डॉग हो जाएंगे, और 10 से 15 डॉग हो जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी और गली मोहल्ले वालों को भी दिक्कत होगी। इसलिए हम डॉग्स की नसबंदी कराते हैं कि अगर एक डॉग है या 2 डॉग है तो वहीं पे स्थिर हो जाए। रहा खाना ना खाना, तो ये तो चॉइस के ऊपर है। अब जैसे मैं बंगाली हूँ, हम लोगों के यहाँ मछली से पूजा होती है। मुस्लिम में ईद बकरीद में चिकन बिरयानी बनती है, दुनिया भर के उनके स्वीट डिश होते हैं जिसमें कि इन सब का भी अपना जगह है, ठीक है ना। हाँ, वो बात सही है आपकी कि हम देख नहीं सकते हैं कि किसी की हत्या। एक मिनट भाई, नीलमथा का रास्ता कौन सा है? अच्छा, शायद यामिनी दी को उनका जवाब मिल गया होगा सर की बातों से। नीलमथा की तरफ जाना है यार। तो जैसे कि हाँ, हम लोग के Yes, पास I did. जैसा कि हम लोग के पास समय की भी एक पाबंदी रहती है, तो उससे पहले तो मैं पहले तो शीला मैम को बुलाना चाहूँगा फॉर नहीं नहीं, गिविंग पक्के अ रास्ते। प्रिसाइडिंग वर्ड्स फॉर दिस सेशन, क्योंकि हम लोग के पास टाइम फाउंडेशन भी है फॉर दिस मीट। थैंक यू आयुष। सबसे पहले तो हम पात्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हम सब लोगों के बीच में, वो चाहते तो मना कर सकते थे, कह देते कि हम इस समय निकले हुए हैं और अभी नहीं आ सकते, पर उनका कमिटमेंट है इतना अधिक कि हम लोगों के प्रति भी, मानव के प्रति भी और एनिमल्स के प्रति, दोनों के प्रति उनका जो सेवा भाव है, वो हम लोगों ने अभी उन्हीं के मुंह से सुना कि वो केरल में जाकर के उस एनिमल के संग जो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है मैम atrocity, कि मैं मना कर दूं। मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के बीच में शेयर करने में। बोलिए। जी जी, थैंक यू सो मच। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे फिर आपके आज के ऑपरेशन के बारे में सुन सके, वो क्योंकि हमारी आज एक दूसरी मीटिंग लगी हुई है, तो आज हम लोगों को इसको यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ेगा। पर आपके साथ हम लोग आगे अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हम सबके साथ जुड़े और आपने इतने अनुभव साझा किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। जी। बच्चों को भी नमस्कार, आपको भी मैम नमस्कार। हम फिर थैंक यू, जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा सर ने बताया कि एक फूड चेन है और हर एक प्राणी का अपना एक स्थान है उस फूड चेन में। तो कौन किसको कहाँ खाता है, ये डिपेंड करता है कि वो ज्योग्राफिक लोकेशन कैसी है, हाँ, वहाँ का मैं यहाँ क्लाइमेट पे पहुंचा कैसा हूँ। है, और आप हेलो। के सराउंडिंग्स का एटमॉस्फेयर हाँ, कैसा पेट्रोल है, टंकी आपका क्रॉस करने कल्चर गया है, कैसा यहाँ है, पे एक आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे खान पीन को डिसाइड करते हैं। ये हमारी चॉइस होगी कि जितना हम कम से कम क्रुएलिटी कर सकें अपना पेट भरने के लिए। तो अगर हमारे पास वेजिटेशन पर्याप्त है, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि जो इंडिया है, यहाँ का क्लाइमेटिक जोन ऐसा है कि हमारे पास अनाज भी खूब है, फल फूल भी खूब है, हमारे पास वेजिटेशन भी खूब है। पर कोई ऐसी जगह हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बर्फ है, तो बर्फ में खेती नहीं हो सकती, वहां पर पेड़ पौधे नहीं मिल सकते, फल फूल इतने नहीं मिलेंगे। तो वहां पे मजबूरी भी कई बार हो जाती है कि वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए कोई काम कर रहे हैं या अपने शौक के लिए कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। तो हम कोशिश करें कि कम से कम अपने शौक के लिए किसी भी एनिमल पर कोई क्रुएलिटी ना करें, उसको बिल्कुल भी तंग ना करें, और उसकी फीलिंग्स को समझते हुए उसके साथ को एग्जिस्ट करें पीसफुली। हर
सराउंडिंग के साथ रहें, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों। और कहा ही गया है कि जो कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल। तो कहा जाता है कि आप अपने शौक के लिए नहीं उसको कष्ट दीजिए। हाँ, यदि आपको लगता है कि आपकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, आपकी ऐसी कल्चरल या आपकी क्लाइमेटिक या आपकी वेदर कंडीशन ऐसी है, जहाँ पर आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, तो ठीक है, सर्वाइवल तो आपका पहला धर्म है, अपने जीवन की रक्षा करना। तो जीवन की रक्षा के लिए हम करते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु अपने शौक के लिए हम किसी भी जानवर को तंग ना करें। और हमें लगता है कि ये मैसेज आज हमारे सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कम से कम अगर हम अपने-अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने आस-पास इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आज जो पात्रा जी ने हम लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया है, उसका पूरा लाभ हम ले पाएँगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के जो होस्ट हैं हमारे आयुष और यामिनी, इन सब लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। और ओएसएच की पूरी टीम जो लगातार बिना ये परवाह किए कि हमें कितने लोग सुनने वाले हैं, कौन सुनने वाला है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, वो लगातार लगातार अपना काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ओएसएच टीम को पूरी बहुत-बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपके वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे सोशल मीडिया में लोगों को ये साझा कर सकते हैं, ताकि आप उनके मन का भी परिवर्तन कर सकें, जिससे कि हमारे आस-पास होने वाली क्रूएलिटी कम हो और एक अच्छा वातावरण हमारे आस-पास निर्मित हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस सेशन में आने के लिए और जुड़ने के लिए और हम लोगों को इतना अच्छा बताने के लिए कि कैसे जानवरों के प्रति जो अत्याचार है वो बढ़ रहा है और उनको कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो जैसे कि मुझे एक बात याद आती है कि अगर हम जानवरों के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है कि अगर हमारा जानवरों के साथ विश्वास रहेगा तो जितनी दिन विश्वास रहेगा उतनी ही ज्यादा तरीके से हम उनसे डरना बंद कर देंगे और जैसे जैसे डरना बंद कर देंगे वैसे वैसे हम उनको अपना मानना भी शुरू कर देंगे। तो ये इन सारे अच्छे विचारों के साथ आज हम अपने ओएसएच सेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। जैसा कि हमारे पास समय की भी सीमा रहती है तो हम फिर से अपने मुख्य अतिथि प्रदीप कुमार पात्रा सर का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे और प्रोफेसर शीला मिश्रा मैम का भी, जो हमारे साथ शुरुआत से ही जुड़ी हुई हैं और ओएसएच को इतने अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं। So thank you so much once again for joining this session, and now this is a wrap for this session. And thank you so much for others as well, those who joined this session, for making it more fruitful and remarkable. And now this is the time. एक मिनट, मैं Yes, sir. सभी से ये कहूंगा, सभी बच्चों से ये कहूंगा कि आप लोग केवल एक सप्ताह जो है किसी भी जानवर को आप बिस्किट दें, रोटी दें लगातार, उसके बाद हम अपना शेयर करें। जरूर Yes, जरूर, sir. ये असाइनमेंट हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सो मच। Yes, Okay, मुझे thank लगता है you. कि जानवर ज्यादा पहुंच गया वफादार हूं। होते हैं इंसानों से। मैं पहुंच गया हूँ, अगर रेस्क्यू देखना हो तो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हम सर लोग जरूर देखते हैं सर, पर हमारी एक मीटिंग 4 बजे से लगी हुई है, चलिए कोई बात तो नहीं, हमारे कोई बाकी बात नहीं। अतिथि लेकिन हम आप वीडियो बनाइएगा और ये वीडियो हम ओएसएस टीम पे जरूर शेयर करेंगे सर। थैंक यू सो मच। जी जी नमस्कार। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। So thank you all of you for joining this session. आयुष, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग को तुरंत ज्वाइन करते हैं। Okay, ma'am.